The protection fund is like a pension fund. Now, this government for years have been raising it, sir, that the EPS 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way, because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund, is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also get it. One most important point is the cyber. As a matter of fact, just today, in today's newspaper, it has come, sir, that just in Delhi alone, 452 crores cases worth of scams in banks have occurred just in the last 1 year. This is just, I'm talking only about Delhi, sir. 452 crores. So how are we going to ride over the technology? How are we going to ride over dark net? So how is this, what is government going to do, or are you working with the banks? Because if you are making sure that you don't want scamsters, you want investors to be protected, so all these old senior citizens whose money is lying in the bank, how are we going to help them and protect them? Because a lot of times they get little notes, they click on it, and the money is gone. So what intervention is the government doing for technology? It's going to be very, very hard. I do understand, because not necessary that this dark net is anybody sitting in India. It could be anywhere in the world. So what intervention is the government doing to safeguard all the securities in the bank? Two small points I'd like to ask. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देखती रह गई जब बैंकिंग अमेंडमेंट बिल यानी कि बैंकिंग संशोधन बिल पर बोलते बोलते सुप्रिया सुले ने किया EPS 95 पेंशन धारकों के दर्द को बयां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी माननीय सांसद सुप्रिया सुले जब भी सदन चलता है, संसद का कोई भी स्तर चलता है, शीतकालीन स्तर हो या उससे पहले के सेशन थे, हर सेशन में बड़े ही पुरजोर तरीके से मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को जरूर उठाती हैं और उठाती रही हैं। और उनका मेन मकसद यही है कि वो हमारे EPS 95 पेंशन धारकों को उनका हक दिलाकर रहेंगी। इसलिए तो वो हर सेशन में हमारे मुद्दे को उठाती है। अब भी उन्होंने विंटर सेशन में जब बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पर उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि बैंक में रखे पैसे का कोई गारंटेड होना चाहिए, कुछ गारंटी होनी चाहिए ताकि हमारे इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि हमारे देश भर के EPS 95 पेंशन धारक जिन्होंने अपना पैसा, उनका खुद का पैसा जमा है वो PF फंड में, लेकिन आज वो दर दर की ठोकरें कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे लेट श्री अरुण जेटली के टाइम पर भी ये कहा गया था कि एटलीस्ट 3,000 रुपये तो पेंशन उनको दिया जाए, और उन्होंने वायदा किया था कि वो उनको दिलाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य मंत्री हैं, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई सारे हमारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, लेकिन उनकी पैसे की क्या गारंटी? आज के महंगाई के टाइम में कम से कम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं तो मांग रहे हैं। क्या वो भी सरकार को गंवारा नहीं है? तो दोस्तों, उनके हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पेंशन आज दादा दादी के रूप में अपने पोते को गिफ्ट भी नहीं दे सकते। स्पीकर से उन्होंने कहा कि PM मोदी हर बात में बोलते कि मोदी की गारंटी है, फिर पेंशन धारकों का हक क्यों नहीं दे रहे? पेंशन धारकों की 3 मांग है जिस पर सरकार को तत्काल अमल करना चाहिए। EPS 95 पेंशन धारकों को लेकर लगातार लोकसभा, राज्यसभा में सवाल उठ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष EPS 95 पेंशन को लेकर सक्रिय है। तो हम यहाँ पर भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने भी कई बार पेंशन धारकों को लेकर PM मोदी के साथ वार्ता की है, लेकिन हमारी सरकार है कि वो अब हमारे EPS 95 पेंशन धारकों को लेकर लगता है असंवेदनशील हो गई है।
महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सदानंद सूले ने लोकसभा में हाथ जोड़कर पेंशन धारकों का हक देने की सरकार से मांग की। 1,000-1,500 रुपए में परिवार का खर्च चलाने वालों का दर्द साझा किया। किस तरह से पेंशनर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इसको समझने की अपील की, बुजुर्गों की तंगहाली बयां की। स्पीकर से यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी हर बात में बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, फिर पेंशन धारकों का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा, पेंशनर जब नौकरी में थे, पीएफ फंड में उनका पैसा गया, आज उसी फंड से सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। औसत 1,500 रुपए की पेंशनर्स के खाते में पेंशन आ रही है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज दादा दादी के रूप में अपने पोते को गिफ्ट भी नहीं दे सकते। अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। 1,500 रुपए में कैसे जीवन चल सकता है, ये सरकार को भी समझना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा, सरकार से पेंशन धारकों की बहुत छोटी सी मांग है, सरकार के पास उनका पैसा पड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि कुछ करेंगे, इसलिए सरकार जल्द फैसला ले। पेंशन धारकों की 3 मांग है जिस पर सरकार को तत्काल अमल करना चाहिए। कैलकुलेशन सही से करें, पति पत्नी को पूरे हक का पैसा पूरा मिले और कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का पैसा भी मिलता रहे। पेंशन धारकों की नाराजगी को देखते हुए लगता है कि ये सरकार सब असंवेदनशील सरकार है, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। लेकिन मोदी ने कई मौकों पर कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र बेहद मजबूत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से हूं मैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को बिना समय गंवाए उचित कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा ये सरकार 2024 के चुनाव के बाद अपनी छवि खो चुकी है, क्योंकि इस देश का हर वर्ग इस सरकार की कार्यवाही से पूरी तरह से निराश है। तो दोस्तों, इस सेशन में हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े मुद्दे को आप जितने भी पेंशन धारक हैं आप तक पहुंचाएं और आपकी आवाज़ बनकर हम अपने चैनल के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाते रहें, ताकि हमारे सरकार के कानों तक आपकी गूंज पहुंच सके। आपकी ताकत ही आपका असली यहाँ पर हक दिलाने में आपकी मदद करेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी गूंगी बहरी सरकार तक इसकी गूंज पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।